Okay, so in the last session, we have discussed about the collection data types in Python. So firstly, we have discussed list, then tuple, sets, and dictionaries. And we have understood different properties of these collection data types. In this lecture, we are going to talk about the functions in Python. So we are going to discuss functions in Python in detail. So up till now, whatever code we have written in a single file, or it was just a single script. So now using functions, we can divide our code in small blocks or in small coding sections, and that can be interrelated or that can be interconnected together. Using or we can call the functions and we can make a proper management of our code. Now, what is function? Now, as far as the function is concerned, or dictionary meaning of function is concerned, so the meaning of function is some task, some work that the software has to perform or that the machine has to complete. So function means some task. For example, in any organization, there are several departments. For example, in a company, there could be a production department, there will be a R&D department, there could be a marketing department, there could be management department, and every department is interconnected and they are communicating with each other. They are calling to each other. So the entire work of the organization is divided in small tasks, and every task or every department now connected to each other and they are communicating with each other. So that is the basic funda used in the programming language, and the same concept, exactly same concept, is used to implement functions in Python. So using functions, we can divide our code in small programs, and that can be connected together, and the proper management and the organization of code can be done using the use of functions. So this is very powerful technique in organizing your code so that your code becomes more readable, more understandable, and easy to debug. Okay, so most importantly, using functions, you will make your code easy to debug. Within short period of time, you can debug your code and you can find out possible error messages in code. Secondly, using functions, it's very easy to update or upgrade the code in future. For example, if you want to change or if you want to upgrade the functionality of your code or your software, you need not to make changes in entire code. You will have to make changes in that particular specific task or that particular function. For example, every cell phone manufacturer will provide an operating system, let's say Android 10 or something. And after some time, they will upgrade their operating system. And now the newer version could be Android next version, maybe 10 or 11 version. So in this particular case, they do not change entire operating system, but they will change small functionality or some functions from that. So they may be changing some functions related to the camera. They may be changing some functions related to, let's say, the contacts. So very small things are changed, and every such task is considered as a function. Now that could be a function. तो इन a simple language, अगर function को define करना है, तो फंक्शन मतलब कोई एक टास्क होगा, कोई एक एक्टिविटी होगी जो किसी भी सॉफ्टवेयर को या फिर मशीन को परफॉर्म करनी होगी। तो कोई भी टास्क, कोई भी एक्टिविटी इज नथिंग बट फंक्शन। नाउ इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम क्या करेंगे, आज तक हमने जितना भी प्रोग्रामिंग लिखी है, वॉट एवर प्रोग्राम्स वी हैव रिटन, हमने एक ही फाइल में और एक ही जगह पे सब कुछ लिखा हुआ था। नाउ व्हाट विल डू, विल कैन डिवाइड अ लार्जर टास्क इनटू स्मॉल स्मॉल टास्क। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सिंपल चीज कंसिडर करते हो, वन सिंपल थिंग, कि जिसके अंदर यू वांट टू एक्चुअली कंट्रोल द फैन, जो भी आपका फैन है उसको कंट्रोल करना है बेस्ड ऑन द रूम टेम्परेचर। फॉर एग्जाम्पल, इफ द रूम टेम्परेचर इज ग्रेटर दैन 35 डिग्री सेंटीग्रेड, देन फैन शुड स्टार्ट। ये आपका एक सिंपल टास्क है, इसके ऊपर आपको काम करना है। तो ये मेजर टास्क है जिसके अंदर after every second, or let's say after every 2 seconds, 3 seconds, we will read the room temperature, and based on that we'll compare that room temperature with 35-degree threshold, and if the temperature is greater than that value, we'll start that fan.
So this is our task. So this task can be divided into three subtasks. Now, number one is reading the temperature through sensor. That could be a task number one. Task number two, comparing that with some threshold value, making some decision. And task नंबर थ्री इज दैट टू कंट्रोल द फैन. तो ये जो अपना बड़ा काम था जिसके अंदर हमें टेम्परेचर कंट्रोल्ड फैन डिज़ाइन करना था, इसको हमने अभी सब डिवाइड किया तीन छोटे छोटे टास्क में. नाउ एवरी टास्क इज नाउ कॉल्ड एज फंक्शन. तो हम हर एक छोटे छोटे टास्क को हम बोलेंगे फंक्शन. और ये सारे फंक्शन एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगे. मतलब जो फंक्शन है या फिर जो छोटा कोड है, जो या फिर प्रोग्राम है जो रीड करेगा रूम टेम्परेचर, वो आफ्टर रीडिंग इट विल सेंड दैट डेटा टू कंपैरिजन और डिसीजन कंट्रोल यूनिट. तो वो डिसीजन कंट्रोल वाला जो भी फंक्शन है वो क्या करेगा, वहां से इनपुट लेगा और वहां से कुछ तो डिसीजन करेगा और वो कंट्रोलिंग फंक्शन को भेजेगा. ना कंट्रोलिंग फंक्शन क्या करेगा, जो भी डिसीजन है ऑन या फिर ऑफ, जो भी कमांड आई है, बेस्ड ऑन दैट कमांड इट विल टर्न ऑन द फैन और इट मे टर्न ऑफ द फैन डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन. तो ये सारे जो काम है अगर हम इसको छोटे छोटे टास्क के अंदर ग्रुप कर ले या फिर उसको डिवाइड कर देंगे, तो इट विल बिकम मोर अंडरस्टैंडेबल, मोर रीडेबल, इजी टू यूज. एंड सेकेंडली मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर इन फ्यूचर मुझे इसमें कुछ अपग्रेडेशंस लाने हैं, मान लो मुझे सिर्फ उसका थ्रेशोल्ड वैल्यू चेंज करना है, इंस्टेड ऑफ 35 डिग्री सेंटीग्रेड अब मैं चाहता हूँ कि इट शुड स्टार्ट अबव 40 डिग्री सेंटीग्रेड, तो मुझे टेम्परेचर रीडिंग में कुछ चेंजेस नहीं करने हैं, ना ही मुझे चेंजेस करने होंगे कंट्रोलिंग पार्ट में. मुझे सिर्फ वो बीच वाला जो फंक्शन है जिसके अंदर हम डिसीजन ले रहे हैं, सिर्फ उस कोड के अंदर मुझे मॉडिफिकेशंस करने होंगे, बाकी के सारे कोड इंटैक्ट रहेंगे. तो दैट इज द इम्पॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ यूजिंग functions and it makes your code more properly organized. सिमिलरली आप अगर किसी भी इसको आप रिलेट करेंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ या फिर किसी भी कंपनी के साथ या फिर किसी भी कॉलेज के साथ, तो आप वहाँ पे देखोगे कि वहाँ पे एक ही पर्सन सारे काम नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल इन अ कॉलेज द प्रिंसिपल इज मोर एजुकेटेड एंड इज मोर एक्सपीरियंस्ड. नाउ द प्रिंसिपल कैन हैंडल एवरी डिपार्टमेंट एंड ही कैन वर्क इन एनी डिपार्टमेंट. तो वो सारे काम वो कर सकते, लेकिन स्टिल दे आर नॉट डूइंग दैट. तो उन्होंने वहाँ पे फिर डिफरेंट एचओडीज आर देयर, देन अगेन द प्रोफेसर्स आर देयर एंड अगेन द लैब असिस्टेंट्स एंड सो ऑन. ये एक पूरा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है. So though the principal can handle each and every task and everything can be handled by one single person, but still it is organized in small entities. तो ये सब करने से this makes more properly organized, और वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रॉपरली फंक्शन करेंगी और वहाँ का जो इफिशियंसी है वो भी बढ़ेगा. सो इट विल इंक्रीज द इफिशियंसी ऑफ वर्क. अगेन इट विल बी easy to maintain and there are lots of advantages of using this modular approach. तो आज हम वही करने वाले हैं and we are going to learn that thing, how we can organize our code in small subcodes, or how to interconnect those small codes to form a larger task. तो basically software मतलब या फिर whatever we are designing as a automation system, इसका मतलब है कोई तो आप task या फिर problem statement solve कर रहे हो. तो it can be anything. तो let's say it can be face recognition based attendance system हो गया. तो इसके अंदर भी हम बहुत सारे टास्क को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. नाउ नंबर वन इज हैंडलिंग द कैमरा, स्टार्टिंग द कैमरा. तो वहाँ से फिर इमेज कैप्चर करना, सो दैट कुड बी इमेज एक्विजिशन टास्क. तो वो एक फंक्शन हो गया. उसके बाद जो इमेज एक्वायर की जाएंगी उसको रिकॉग्निशन वालों को भेजा जाएगा, जहाँ पे वो रिकॉग्नाइज करेंगे कि वो किसका फेस है. एंड देन अटेंडेंस वाला जो लास्ट फंक्शन होगा वहाँ पे इट विल मार्क द अटेंडेंस. तो अपना जो लार्जर टास्क है जहाँ पे फेस रिकॉग्निशन बेस्ड अटेंडेंस सिस्टम, ये सिंपल लैंग्वेज में हम बोल रहे हैं, इट इज डिवाइडेड इन मेनी सब टास्क. और वो सारे सब टास्क एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होंगे एंड आफ्टर दैट वी कैन फॉर्म अ लार्ज सिस्टम. तो ये हर एक जगह पे अप्लाई करेगा. आप चाहो ऑपरेटिंग सिस्टम आपके एंड्रॉयड फ़ोन का या फिर विंडोज़ का देख पाओगे, या फिर किसी एटीएम मशीन या फिर टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन का कोई भी एप्लीकेशन हो सकता है. सो व्हाटएवर मे बी योर सॉफ्टवेयर, आप जितने भी सॉफ्टवेयर्स यूज़ कर रहे हो, वहाँ पे एक ही फ़ाइल में सारा कोड नहीं लिखा जाएगा. सो देयर विल नॉट बी अ थिंग लाइक कि एक ही सडनली एक ही फ़ाइल के अंदर सारा कोड लिखा हुआ है, एवरीथिंग इज़ रिटन इन वन सिंगल फ़ाइल. दिस इज़ नॉट द केस.
ओके, तो डेफिनेटली वहाँ पे अलग अलग छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड किया जाएगा, सो दैट इन फ्यूचर वेन एवर अपग्रेडेशन इज रिक्वायर्ड ओनली दैट टास्क और ओनली दैट फाइल के अंदर चेंजेस करने से अपग्रेडेशन हो जाएगा। सारा कोड इंटैक्ट रहेगा, किसी भी अदर कोड में चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो दैट इज वेरी मच पावरफुल टेक्निक। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस थ्री डिफरेंट थिंग्स in programming. So first of all, we are going to discuss function. Function क्या होता है? Then we are going to discuss module, and secondly we are going to discuss the package. So function, module and package, ये तीन चीजें आज हम देखने वाले। So as far as the function is concerned, तो ये छोटा टास्क और स्मॉल पीस ऑफ कोड जो कि एग्जीक्यूट करेगा जब भी हम उसको कॉल करेंगे। इसका मतलब है कि कोई एक ऑर्गेनाइजेशन में आपने ऑर्गेनाइजेशन बनाई या फिर कंपनी बनाई है, उसके अंदर बहुत सारे एम्प्लॉइज़ को हायर किया है, तो अभी हम हर एक एम्प्लॉयी को एक फंक्शन बोलेंगे। लेट्स से कि एक एम्प्लॉयी मार्केटिंग का काम कर रहा है, एक आर-एन-डी का कर रहा है, एक प्रोडक्शन का कर रहा है, एक मैनेजमेंट का देख रहा है। तो देयर आर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़, दैट मीन्स नंबर ऑफ फंक्शन। तो उस कंपनी के अंदर बहुत सारे फंक्शंस है, अलग-अलग काम है। तो a function is a small code which will be executed only when it is getting called. तो जब भी उसको हम कॉल करेंगे तभी वो एग्जीक्यूट करेगा। मान के चलो अपने ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे एम्प्लॉयज हायर करके रखे हैं, लेकिन उनको उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी उनको पता है कि उनको क्या करना है। लेकिन जब तक आप उनको काम असाइन नहीं करोगे वो काम नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल कोई मार्केटिंग का है, तो अगर उसको मार्केटिंग के लिए कुछ डेटा या फिर कुछ एक्शन प्लान नहीं दोगे या फिर कुछ टास्क नहीं दोगे तब तक वो काम नहीं करेगा, या फिर जब तक हाँ आप उसको कमांड नहीं दोगे तब तक वो काम नहीं करेगा। तो फंक्शन का भी वैसे ही है। आप आपके कोड को छोटे छोटे फंक्शंस के अंदर डिफाइन कर दोगे और वो सारे फंक्शंस तभी एग्जीक्यूट करेंगे जब हम उसको कॉल करेंगे। तो नाउ वी आर गोइंग टू define one small function. So as usual, I have opened the VS Code ID, and inside that I have created main.py file. Secondly, two things you need to take care while using this ID. Number one, the Python extension must be installed. तो आप अगर यहाँ पे extension पे click करोगे तो you will find this Jupyter and Python. These two extensions are already installed. And secondly, you should see Python 3.8.0 और whatever version you are using, यहाँ पे वो interpreter लोड होना चाहिए। अगर वो लोडेड है उसके बाद ही आप उसको कोड को रन कर पाओगे, डिबग कर पाओगे, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू वर्क ऑन दैट कोड। सो नाउ एज फार एज द फंक्शन इज कंसर्न, फंक्शन को डिफाइन करना है, तो उसके लिए एक सिंपल थिंग है, यू कैन यूज द डेफ कीवर्ड टू डिफाइन एनी फंक्शन। उसके बाद आपको किसी भी फंक्शन का नाम देना है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे नाम देता हूँ माय फंक्शन। तो यहाँ पे एक सिंपल सा नाम देता हूँ। नाउ अगेन दिस नेम इज यूजर डिफाइंड, उसके बाद डबल ब्रैकेट्स देन कोलन, और इसके अंदर आपको लिखना है कि ये फंक्शन क्या काम करेगा। वॉट एवर कोड और जो भी इंस्ट्रक्शंस ये फंक्शन एग्जीक्यूट करने वाला है वो यहाँ पे लिखना है। सो यहाँ पे मैं सिंपली यहाँ पे लिख देता हूँ, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, दिस इज फंक्शन। ये एक फंक्शन है, तो ये कोड इस तरह से मैं सेव कर दूंगा। तो ये होगा एक फंक्शन। तो फंक्शन डिफाइन करने के लिए जिस तरह से हम फॉर लूप एंड इफ स्टेटमेंट डिफाइन करते हैं उसी तरह से करना है, लेकिन यहाँ पे डेफ कीवर्ड होगा, एंड देन यू विल हैव टू राइट द फंक्शन नेम। तो फंक्शन का जो नेम है इट इज अगेन यूजर डिफाइंड, और उसको वही सारे रूल्स अप्लाई होते हैं जो हमने वेरिएबल्स के लिए देखे हैं, जिसके मतलब है कि फंक्शन के अंदर कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। आप इस तरह से नहीं लिख सकते कि माई स्पेस फंक्शन, दिस विल बी एरर। आप इस तरह से डेफिनेटली लिख सकते हैं माय फंक्शन। तो जो नाम यहाँ पे आप दे रहे हो, वॉट एवर नेम यू आर गिविंग, दिस इज अप टू यू, लेकिन अगेन यू विल हैव टू फॉलो सम रूल्स विच वी हैव फॉलोड फॉर द वेरिएबल डिक्लेरेशन पर्पस। तो इस फंक्शन का आप कुछ भी नाम दे सकते हो। इट शुड नॉट स्टार्ट विद एनी नंबर, इट शुड नॉट कंटेन एनी स्पेसेस, इट शुड नॉट कंटेन बी अ कीवर्ड। तो ये सारे जो रूल्स थे, एंड अगेन इट इज केस सेंसिटिव ऑल्सो, तो जो कुछ भी आप लिखोगे वो सारा केस सेंसिटिव भी होगा। तो जो सारे रूल्स हमने यूज करे हैं या फिर कंसिडर करे थे while defining the variable names, exactly same rules are still applicable over here। तो इस तरह से आप इसको फंक्शन को डिफाइन कर पाओगे। और अगर आप ये सोच रहे होंगे कि अगर मैं इसको रन करूंगा तो इट विल प्रिंट दिस इज अ फंक्शन, तो इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। सो आफ्टर रनिंग दिस, it has executed,
बट नथिंग हैज़ प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन। तो स्क्रीन पे ऊपर कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। तो जैसे मैंने बोला कि फंक्शन तभी एग्जीक्यूट करेगा जब हम उसको कॉल करेंगे। जैसे कोई एम्प्लॉय है वो तभी काम करेगा जब हम उसको बोलेंगे कि ये काम करो। सो व्हेनेवर वी विल ऑर्डर हिम टू डू सम टास्क, ओनली इन दैट केस कि वो काम करेगा। दो ही नोज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे इस फंक्शन को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है कि इसको क्या करना है, इसको प्रिंट करना है, ये इसको पता है। लेकिन ये प्रिंट तभी करेगा जब हम उसको कॉल करेंगे। सो व्हेनेवर आई विल कॉल दिस फंक्शन देन ओनली इट विल एग्जीक्यूट। तो ये सब कुछ जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसे हम बोलेंगे फंक्शन का डेफिनेशन, जिससे हमने फंक्शन को डिफाइन किया है। फंक्शन मतलब स्मॉल कोड जो कि कुछ काम करेगा, कोई टास्क करेगा। इन दिस केस प्रिंटिंग दिस इज फंक्शन, कुछ तो मैसेज प्रिंट करने का ये काम करेगा। तो अब हाउ टू कॉल दिस फंक्शन। तो पाइथन के अंदर फंक्शन को कॉल करने के लिए सिंपली यू विल हैव टू राइट द नेम ऑफ द फंक्शन एंड डबल ब्रैकेट। तो आफ्टर डूइंग दिस इट विल कॉल दिस फंक्शन। तो इसके लिए अभी दो चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट है वो रखनी पड़ेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन को आप इस तरह से कॉल करोगे। सेकेंडली जो भी फंक्शन आपने डिफाइन किया है वो इस कॉलिंग वाले कोड से ऊपर होना चाहिए। इट शुड बी बिफोर दिस। तो फंक्शन का डेफिनेशन आपका ये जो फंक्शन का जहाँ पे आप कॉल कर रहे हो उसके पहले होना चाहिए। तो अब मैं इसको शॉर्ट में लिखता हूँ, फंक्शन कॉल। तो इसको फंक्शन को कॉल किया जाएगा, मतलब इस वाले कोड को कॉल किया जाएगी कुछ काम करने के लिए। एंड दिस इज फंक्शन डेफिनेशन। तो ये फंक्शन का डेफिनेशन है। तो यहाँ से इट विल कॉल दिस फंक्शन। तो यहाँ से whatever function we are having this will be called by this calling function। तो यहाँ से इसको कॉल किया जाएगा, आफ्टर दैट इट विल एग्जीक्यूट। तो इन दिस केस अगर मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पे दिस इज अ फंक्शन, ये वाला चीज यहाँ पे प्रिंट हो चुका है बिकॉज कि यहाँ पे इस वाले फंक्शन को कॉल किया है। तो जब मैं कॉल करूंगा इन दैट केस ओनली दैट फंक्शन विल एग्जीक्यूट, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। सेकेंडली जो फंक्शन का डेफिनेशन है इट शुड बी अबोव द फंक्शन कॉल। अगर आपने फंक्शन कॉल नीचे रखा है तो उसके ऊपर उसका डिफाइन करना होगा, तब जाके आप उसको यूज कर पाओगे, बिकॉज इट शुड बी प्रीवियसली डिफाइंड, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू यूज। एट सिंपल एज दैट। सो नाउ यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हम फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। तो ये अपना कोड है और इस वाले फंक्शन को ये कॉल करके एग्जीक्यूट करेगा। सो नाउ इंस्टेड ऑफ दिस थिंग आई विल डिफाइन वन फंक्शन टू ऐड टू नंबर। तो उसके लिए मैं फंक्शन का नाम देता हूँ एडिशन। यू कैन गिव एनी अदर नेम एज वेल। तो आप यहाँ पे एडिशन का नाम दोगे एंड यहाँ पे कोलन, और यहाँ पे मैं लिखूंगा num1 इक्वल्स टू लेट्स से 10 और नंबर 2 इक्वल्स टू लेट्स से 20। एंड देन यहाँ पे प्रिंट करेंगे हम num1 प्लस num2, इन दोनों का एडिशन इस तरह से यहाँ पे प्रिंट। एंड देन you will call this function here. After calling this function, it will take these two numbers. So यहाँ पे क्या होगा कि हमने एक फंक्शन बनाया है, उसका एक छोटा सा टास्क असाइन किया है। टास्क क्या है कि दो नंबर्स का एडिशन परफॉर्म करनी है। वो दो नंबर कौन से है, नंबर 1 एंड नंबर 2, ये दो नंबर है। नंबर 1 का वैल्यू है 10, नंबर 2 का वैल्यू है 20। एंड उनका जो एडिशन है वो हो जाएगा num1 प्लस num2। और ये जो फंक्शन है और इसको यहाँ से हमने कॉल किया है, तो एक बार कॉल हो जाएंगी तो ये दो नंबर का एडिशन होकर उसका रिजल्ट प्रिंट होगा। तो एक्सपेक्टेड आउटकम इज 30। तो फंक्शन का ये जो कोड जब हम इस तरह से लिखेंगे तो फंक्शन वाला तभी एग्जीक्यूट करेगा जब हम उसको कॉल करेंगे। तो पहली लाइन जो इस वाले प्रोग्राम में एग्जीक्यूट होगी वो होगी ये एडिशन, क्योंकि इसको कॉल ही नहीं हुआ तो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। इस वाले लाइन पे इसको कॉल हो रही है तो वो एग्जीक्यूट करेगा। तो जैसे मैं यहाँ इसको रन करूंगा आई एम गेटिंग हियर 30। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमने उसको फंक्शन को बोल दिया है कि आप दो नंबर का एडिशन कर दो, नंबर भी आप ही ले लो और उसका जो कुछ भी रिजल्ट है वो आप ही कर दो, और जो भी है वो आप ही चेकआउट कर लो या फिर आप ही प्रिंट कर दो। नाउ ये एक सिंपल इसका एग्जांपल मैं अगर एक्सप्लेन करना चाहता हूँ तो फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोल दिया है कि ठीक है आप कोई भी एक असाइनमेंट सॉल्व कर दो, मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है। तो आप क्या करोगे कि एक कोई भी आपके मन से कोई भी असाइनमेंट ले लोगे, रैंडमली विल पिक समथिंग,
वो उसको सॉल्व करोगे और एज़ आई सेड कि डोंट शो मी, तो आप आपके तरफ ही उसका चेकआउट करके वहाँ पे रख दोगे। तो ये वाला केस इस तरह से है कि यहाँ पे फ़ंक्शन को बोला है कि डू एडिशन, कौन से नंबर पे करना है, कहाँ पे प्रिंट करना है रिज़ल्ट, वो सब कुछ ये फ़ंक्शन ही देखेगा। लेकिन अगर मैंने बोला कि ये वाली असाइनमेंट करो, लेट्स से कि आप एक पर्टिकुलर नंबर इवन है, ऑड है, वो चेक करने के लिए एक असाइनमेंट लिखो और आप आपके पास रिजल्ट रखो, मुझे असाइनमेंट सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इन दैट केस दिस एडिशन शुड सप्लाई समथिंग। तो मैंने आपको कुछ डेटा दिया है कि कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है कि टेक दिस इन्फॉर्मेशन, टेक दिस असाइनमेंट, टेक दिस डेटा एंड उसके ऊपर आप प्रोसेस करो, उसका उसके ऊपर काम करो और जो भी रिजल्ट है वो आप वेरीफाई करके आपके पास ही रखो, मुझे दिखाने की ज़रूरत नहीं है। सो दैट विल बिकम वन वे कम्युनिकेशन। मैंने दिया लेकिन आपसे रिटर्न में कुछ माँगा है नहीं। और अगर मैंने बोला कि ये इवन और ऑड के असाइनमेंट करो एंड टुमारो सबमिट दैट असाइनमेंट टू मी, सो आई हैव गिवन सम इनपुट टू यू and again in return I am expecting something from you, so in that case there will be a communication between two codes। so मैंने आपको कुछ तो दिया है और रिटर्न में भी मैं आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। now in this particular case instead of giving these numbers, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि ये जो नंबर्स है हम इस वाले फंक्शन के अंदर पास कर सकते हैं। एक तो आप यहाँ से 10, 20 इस तरह से पास कर सकते हो कि ये दो नंबर का एडिशन करो, या फिर यहाँ पे सिंपली आप यहाँ पे a इक्वल टू 10 दो वेरिएबल्स ले सकते हो एंड b इक्वल्स टू 20 ये वेरिएबल्स ले सकते हो। तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ दिस वन वी कैन टेक a एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे हम ले लेंगे b। ओके, तो यहाँ पे a और b क्या है, व्हाट इज a एंड b, वेदर इट इज कीवर्ड है, वेरिएबल्स है, डिसीजन कंट्रोल वाले है, क्या है? जस्ट आंसर इन द चैट सेक्शन, व्हाट इज दिस a एंड b? Whether they are some decision control statements, whether they are variables, whether they are looping structures. Very correct. Variables. Okay. So this A and B are variables. तो ये दो वेरिएबल्स हम क्या करें, ये जो है वेरिएबल मतलब कुछ तो डेटा स्टोर करेंगे, डेटा मतलब कुछ इंफॉर्मेशन है। तो ये इंफॉर्मेशन हम पास कर रहे हैं किसको, एडिशन वाले फंक्शन को। तो एडिशन वाला फंक्शन विल टेक दिस टू इंफॉर्मेशन और यहाँ से वो जाएगा। तो अगेन एज द एडिशन इज हैविंग सम वेरिएबल्स, तो यहाँ पे भी हमें लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी आप a कॉमा बी लिख सकते हो, अभी मैं शॉर्टली बताऊंगा। तो आपको यहाँ पे भी a कॉमा बी, या फिर यहाँ पे आप कुछ और भी यूज कर सकते हो, num1 कॉमा num2 इस तरह से। So now this A and B and whatever or this num1 and num2 इसको बोला जाता है फंक्शन पैरामीटर्स और आर्गुमेंट्स। इसे हम बोलेंगे फंक्शन के पैरामीटर्स या फिर आर्गुमेंट। सो व्हाट इज पैरामीटर्स और आर्गुमेंट? द इंफॉर्मेशन पास टू द फंक्शन इज नथिंग बट फंक्शन पैरामीटर्स और फंक्शन आर्गुमेंट्स। तो यहाँ पे ये फंक्शन के आर्गुमेंट्स है ए एंड बी या फिर num1 num2। तो ये जो है दिस इज द इंफॉर्मेशन पास्ड टू दिस फंक्शन, ये इंफॉर्मेशन इस फंक्शन को पास की हुई है। यहाँ पे अगर आपने ए एंड बी यूज किया है तो यहाँ पे कुछ और वेरिएबल्स के भी नाम यूज कर सकते हो, या फिर आप सिंपली ए एंड बी भी यूज कर सकते हो। तो ये कंपलसरी नहीं है कि यहाँ पे आपने जो नेम्स यूज किए वही आपको यहाँ पे यूज करने पड़ेंगे। सो इट्स ऑल अबाउट द वेरिएबल स्कोप कि एक वेरिएबल यहाँ पे वैलिड है तो वो वहाँ पे या फिर वो ब्लॉक में अंदर वैलिड होगा। सेकेंडली यहाँ पे क्या होता है कि सिंपली ए का जो कुछ भी वैल्यू है वो कॉपी किया जाएगा num1 के अंदर और बी का जो कुछ भी वैल्यू है वो कॉपी किया जाएगा num2 के अंदर। तो दो आई एम यूजिंग सम डिफरेंट वेरिएबल नेम्स ओवर हियर, यहाँ से इस वेरिएबल का वैल्यू इसके अंदर कॉपी किया जाएगा एंड इस वाले वेरिएबल का वैल्यू दूसरे इसके अंदर कॉपी किया जाएगा एंड आफ्टर दैट इट विल प्रिंट द रिजल्ट कि num1 प्लस num2 उसका जो कुछ भी रिजल्ट है वो प्रिंट आउट किया जाएगा। तो now again we'll run this code with some argument, so again I am getting 30 as a result। तो आपकी बार हमने क्या किया कि फंक्शन को हमने कुछ डेटा दे दिया कि ये डेटा ले लो और उसका एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन आप कर लो। तो चलो यहाँ पे हम और एक चीज देखेंगे कि क्या फंक्शन यहाँ से रिटर्न इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग इनसाइड दिस, क्या फंक्शन यहाँ से कुछ रिटर्न कर सकता है? डेफिनेटली कर सकता है। तो हम इसके अंदर अभी रिटर्न लिखेंगे
इन ब्रैकेट लेट्स से num1 प्लस num2। तो जो कुछ भी रिटर्न करना है वो वहां से रिटर्न करेंगे। या फिर आप यहाँ पे कुछ और एक वेरिएबल भी डिफाइन कर सकते हो कि रिजल्ट करके, रिजल्ट इक्वल्स टू num1 प्लस num2, और फिर यहाँ पे आप रिजल्ट लिख सकते हो। तो दोनों केसेस में ये सही है, दोनों गलत नहीं है। मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा था num1 प्लस num2 विदाउट टेकिंग एडिशनल वेरिएबल ओवर हियर, लेकिन यहाँ पे ये फंक्शन कुछ काम करेगा, और वो जो भी काम है दैट विल बी स्टोर्ड इन सम वेरिएबल एंड दैट विल बी रिटर्न फ्रॉम हियर। सो नाउ दिस फंक्शन, हम इसको कुछ इनपुट भी दे रहे हैं एंड आई एम एक्सपेक्टिंग समथिंग इन रिटर्न फ्रॉम दैट। अगर रिटर्न वहां से ले रहे हैं तो दैट वी शुड स्टोर समवेयर। तो वो जो रिटर्न है वो हम यहाँ पे ले लेंगे। लेट्स से add equals to addition. Now add is a variable again, just like this a and b. This add is again a variable. तो इसके अंदर क्या होगा? This will make call to this addition function. Addition function के अंदर हमने a और b को as a parameter या फिर argument पास किया. Now value of a is copied into num1, value of b is copied into num2. तो फिर result variable में num1 plus num2 हो गया, और ये result हमने यहाँ से रिटर्न करवाया, यहाँ पे हमने प्रिंट नहीं करवाया, तो रिटर्न होके कहाँ पे आ जाएगा? उस ऐड के अंदर स्टोर हो जाएगा। नाउ दैट वॉट एवर द रिजल्ट विच इज रिटर्न फ्रॉम द फंक्शन विल बी स्टोर्ड इन द ऐड वेरिएबल। नाउ अगर मुझे इसको प्रिंट करना है तो यहाँ पे मैं प्रिंट करूंगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिजल्ट इक्वल्स टू, ये कुछ भी आप लिख सकते हो, ऐड। नाउ आई विल प्रिंट दिस रिजल्ट। If I run this code, now in this case, result equal to 30. In this way, I'm getting this. Now this will become full duplex communication, दोनों तरफ से communication। पहले मैंने वो जो कोड है, now this is our one code, ये अपना एक कोड हो गया, और ये अपना अलग से कोड हो गया, another code। नाउ दीज टू कोड्स आर कम्युनिकेटिंग विच ईच अदर। तो ये दो पार्टीज एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रही है। तो मेरा जो टोटल काम था, जो एक्चुअल टास्क था, जिसके अंदर मुझे दो नंबर्स का एडिशन या फिर कुछ भी करना था, सब्सट्रैक्शन भी कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी करने, तो दो नंबर्स के ऊपर कुछ तो प्रोसेस करना था। Now, for that purpose, I have divided that entire task into two small tasks. Now, पहले जो टास्क है वो करेगा कि दो नंबर्स इनपुट लेगा एंड वो भेज देगा इस एडिशन फंक्शन को, और एडिशन फंक्शन एक्चुअली उसका ऑपरेशन करेगा, एडिशन करेगा, और वो जो कुछ भी रिजल्ट है वो यहाँ पे प्रिंट करेगा। तो टेकिंग इनपुट एंड डिस्प्लेइंग रिजल्ट, ये काम कर रहा है ये वाला कोड, और ये दिस वाला कोड क्या कर रहा है? परफॉर्मिंग एडिशन, ये इसका काम है। तो जो टोटल टास्क था, जो मेजर टास्क था, नाउ इट इज डिवाइडेड इनटू टू सब टास्क। इनपुट आउटपुट वाला काम जो कर रहा है वो एक कोड कर रहा है, एंड एक्चुअल ऑपरेशन परफॉर्म जो कर रहा है वो दैट इज डन बाय सम डिफरेंट कोड। नाउ दिस इज कॉल्ड एज द फुल डुप्लेक्स एंड फंक्शन विद द रिटर्न वैल्यू। इस तरह से फंक्शन रिटर्न करेगा। ना आप अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे अगर इंस्टेड ऑफ एडिशन मैं सब्सट्रैक्शन का एक बार ट्राई करके देखता हूँ, और यहाँ पे इंस्टेड ऑफ दिस लेट्स टेक दिस एस वेरिएबल, एंड यहाँ पे इंस्टेड ऑफ एडिशन नाउ आई हैव दिस सब्सट्रैक्शन। तो ये नाम जो है फंक्शन का, इट्स अप टू यू, आप कोई भी नाम यहाँ पे दे सकते हो। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे सब्सट्रैक्शन का रिजल्ट एस वेरिएबल हमने लिया है। तो अगर क्या होगा कि आपने यहाँ पे जो सीक्वेंस है, ये जो ए एंड बी है, अगर इस तरह से किया है, तो डेफिनेटली यहाँ पे सब्सट्रैक्शन है तो मैं माइनस बी कर लूंगा। तो इस तरह से हम दे देंगे, तो मेरा रिजल्ट जो है वो -10 निकल के आया। दैट मीन्स दिस 10 -20 विच इज करेक्ट। लेकिन अगर मैं यहाँ से बी कॉमा ए करता हूँ, मैंने यहाँ पे अगर सीक्वेंस सही नहीं रखा है, इफ आई हैवंट मेंशन्ड द करेक्ट ऑर्डर, तो इन दैट केस इफ आई ट्राई टू रन दिस, नाउ दिस टाइम द रिजल्ट इज +10। तो यहाँ पे a का मतलब num1 नहीं है और b का मतलब num2 नहीं है। इसका सीधा मतलब है कि जो यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे जो कुछ भी वैल्यू है वो इसके फर्स्ट पोजीशन में कॉपी की जाएंगी, और इसके सेकंड पोजीशन में जो कुछ भी वैल्यू है दैट विल बी कॉपीड इनटू द सेकंड पोजीशन, यहाँ पे जो कुछ भी। तो ये पोजिशनल आर्गुमेंट्स होते हैं। इसका इससे कोई लेन देन नहीं है कि ये ए मतलब फर्स्ट वैल्यू एंड बी मतलब सेकंड वैल्यू, या फिर अगर मैं यहाँ पे num1 num2 भी यूज करूंगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस ए एंड बी, इवन इफ आई यूज दिस num1, सेम वेरिएबल्स आई कैन यूज, एंड यहाँ पे अगर मैं num2 यूज करूंगा तो ये num1 एंड num2
इसका जो स्कोप है सिर्फ़ इसके लिए लिमिटेड है। तो इसका मतलब है ये जो num1 num2 है, वो सिर्फ़ इस वाले कोड को पता है एंड दिस num1 एंड num2 ये सिर्फ़ इस वाले कोड को पता है। तो इसका और इसका कोई संबंध नहीं है। तो दिस num1 एंड num2 इज़ ओनली लिमिटेड टू दिस फंक्शन एंड दिस num1 एंड num2 रिलेटेड टू दिस फंक्शन ओनली। तो यहाँ पे अगर मैं num2 लिखूँगा फर्स्ट ऑफ ऑल num2 और अगर मैं यहाँ पे num1 लिखता हूँ, तो अगर आप यहाँ पे सोचोगे कि num1 मतलब दिस 10 है एंड देन num2 मतलब 20 है, तो 10 माइनस 20 यहाँ पे माइनस 10 रिजल्ट आना चाहिए। सो स्टिल दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन, यहाँ पे प्लस 10 मिलेगा क्योंकि ये पोजिशनल आर्गुमेंट्स होते हैं। तो ये num2 जो है वो num1 के अंदर कॉपी किया जाएगा और दिस num1 विल बी कॉपीड इनटू num2। तो अगर मैं यहाँ पे सही ऑर्डर में लिखूंगा तो वो सारे करेक्ट हो जाएंगे। सो इन दिस वे इट विल बी करेक्ट। अगर मैं इसका ऑर्डर सही से लिखूंगा तो इट विल बी -10। ओके, नाउ दिस टाइम इट इज ओके। सो दिस हाउ यू हैव टू टेक केयर कि आपने जिस ऑर्डर में इसको लिखा है उसी ऑर्डर में आपको ये सब कुछ यूज करना पड़ेगा। और वन मोर थिंग कि यहाँ पे अपने दो आर्गुमेंट पास किए हैं और यहाँ पे अपने एक ही आर्गुमेंट लिखा हुआ है। सो यू आर पासिंग टू आर्गुमेंट्स एंड एक्चुअली इन द फंक्शन डेफिनेशन देयर इज ओनली वन आर्गुमेंट। सो इन दैट केस क्या होगा? इन दैट केस देयर विल बी एरर कॉल्ड दिस फंक्शन टेक्स टू पोजिशनल आर्गुमेंट्स। यहाँ पे दो आर्गुमेंट्स मतलब सॉरी वन पोजिशनल आर्गुमेंट ये लेता है बट टू वेर गिवन। सो ये फंक्शन डेफिनेशन के अंदर आपने बोला है कि फंक्शन विल एक्सेप्ट ओनली वन आर्गुमेंट num1 बट यू आर पासिंग टू डिफरेंट आर्गुमेंट्स num1 एंड num2। आप दो आर्गुमेंट्स यहाँ पे पास कर रहे हो विच इज इनकरेक्ट। तो आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा आर्गुमेंट, तो इस तरह से अगर आपको कुछ एरर मिलता है तो that means you are there is an conflict in between the number of arguments you are passing and actually number of arguments you have defined। अगर गलती से यहाँ पे और एक आर्गुमेंट आपने पास कर लिया, लेट्स से 10 यहाँ पे, या फिर आप num3 भी लिख सकते हो वेरिएबल नाम देके। सो इन दैट केस अगर आप इसको रन करने की कोशिश करोगे तो फिर से आपको एरर मिलेगा कि दिस टेक्स टू पोजिशनल आर्गुमेंट्स बट थ्री वेर गिवन। तो यहाँ पे दो ही चाहिए लेकिन आपने तीन दिए। तो अगर इस तरह से अगर आपको कोई भी एरर इन फ्यूचर आता है तो इसका सीधा मतलब है कि नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स के अंदर गड़बड़ है। आपने नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स वहाँ पे एक तो कम ली है और ज़्यादा ट्रांसफर कर रहे हो, या फिर वहाँ पे ज़्यादा है लेकिन आप कम दे रहे हो। सो दीज टू थिंग्स यू विल हैव टू टेक केयर। तो अभी हम ये एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इसमें का कि अगर मैं यहाँ पे गलत ऑर्डर में ये डेटा देता हूँ, यहाँ पे लेट्स से आई एम गिविंग दिस इज एज ए and this as a b instead of num1 and num2, और यहाँ पे अगर मैं a कॉमा b लिखूंगा तो जो भी एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वो मुझे मिलना है विच इज -10। और अगर मैं उल्टा लिखता हूँ तो अभी हमने शॉर्टली देखा है कि वो गलत रिजल्ट आ रहा है। So in this case actually you can use keyword argument। So you can use keyword argument जिससे आप ऑर्डर कोई भी रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो ये वाले केस में एक प्रॉब्लम है कि हमें ऑर्डरिंग पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपने जो भी डिफाइन किया है इसके अंदर वॉट एवर वेरिएबल्स यू हैव यूज, मे बी num1 num2 num3 num4 और कुछ भी हो सकते हैं, एक्स वाई जेड पी क्यू आर टेम्परेचर वॉट एवर। तो उन वेरिएबल्स की जो ऑर्डर है उसी ऑर्डर में यहाँ पे पास करनी होगी। अगर गलत ऑर्डर में पास किया तो गलत वेरिएबल में गलत डेटा कॉपी हो जाएगा। मे बी टेम्परेचर के अंदर ह्यूमिडिटी कॉपी किया जाएगा, ह्यूमिडिटी के अंदर टेम्परेचर कॉपी किया जाएगा। तो ये प्रॉब्लम आ सकती है अगर आपने यहाँ पे ऑर्डरिंग गलत हुई तो, आपकी ऑर्डर यहाँ पे गलत हुई तो। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यू शुड टेक केयर अबाउट इट। तो अगर इसको सॉल्व करने के लिए मैं चाहता हूँ कि आई डोंट वांट टू रिमेंबर द ऑर्डर और मुझे वो ऑर्डर देखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक सॉल्यूशन पाइथन आपको प्रोवाइड करता है एंड दैट इज यूजिंग कीवर्ड आर्गुमेंट। तो कीवर्ड आर्गुमेंट के अंदर जो भी आपके यहाँ पे आर्गुमेंट्स है वो आप इस तरह से लिख सकते हो, num1 इक्वल टू a एंड num2 इक्वल्स टू बी। अगर आप इस तरह से इसको लिखोगे और अब इसको आप रन करने की कोशिश करेंगे तो -10 आपको मिलेगा विच इज करेक्ट रिजल्ट। अभी हम देखेंगे कि ठीक है, हम यहाँ से
इस वाले कोड को यहाँ से उल्टा लिखेंगे। पहले हम b पास करेंगे, सॉरी num2 इक्वल्स टू लेट्स से b, और यहाँ पे num1 इक्वल्स टू a। इस तरह से हम पास करेंगे। तो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे कि b पहले दिया है और a लास्ट में दिया है, तो पहले वाले केस में क्या होता था कि वो +10 रिजल्ट आता था व्हिच वाज इनकरेक्ट। लेकिन अब अगर हम इसको रन करेंगे तो विल गेट द -10 ओनली। तो यूजिंग कीवर्ड आर्गुमेंट्स वी कैन सॉर्ट दिस प्रॉब्लम। तो अगर हम कीवर्ड आर्गुमेंट यूज करेंगे तो ये प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी। तो अब इन दैट केस आप कोई भी ऑर्डर में किसी भी तरह से कुछ भी डाल दो, कोई प्रॉब्लम होने वाली है नहीं। देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे फेस करने की जरूरत नहीं होगी। चलो, एक प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम ये था कि अगर मैंने कम ज़्यादा आर्गुमेंट्स दे दिए, तो यहाँ पे चलो ए और बी ही था, इट वाज ए कॉमा बी ओनली। तो आप एक तो कीवर्ड आर्गुमेंट यूज कर सकते हो, लेकिन नाउ आई एम नॉट यूजिंग दैट। तो इंस्टेड ऑफ दिस अगर मैं यहाँ पे एक ही आर्गुमेंट पास करता हूँ, तो इन दैट केस आई वाज गेटिंग दिस एरर कि एक पोजिशनल आर्गुमेंट यहाँ पे मिसिंग है विच इज num2। तो यहाँ पे एक्चुअली आपको दो आर्गुमेंट की रिक्वायरमेंट है, बट ओनली वन वाज गिवन। सो वन पोजिशनल आर्गुमेंट इज मिसिंग एंड दैट आर्गुमेंट इज num2। तो हो सकता है कि ड्यूरिंग प्रोग्रामिंग आप कोई आर्गुमेंट मिस कर दो, तो ये जनरली तो पॉसिबिलिटी है नहीं। लेकिन ऐसा हो सकता है कि कुछ डिफ़ॉल्ट हो कि अगर किसी वो आर्गुमेंट पास नहीं किया है, तो उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होनी चाहिए। हो सकता है किसी फ़ंक्शन को सारे आर्गुमेंट की ज़रूरत ना पड़े। तो इन दैट केस आप यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी किसी भी आर्गुमेंट का असाइन कर सकते हो। लेट्स से डिफ़ॉल्ट वैल्यू इज़ 5। तो इन दिस केस num2 का डिफ़ॉल्ट वैल्यू 5 है। अगर आपने कुछ वैल्यू पास की है तो इट्स ओके, जो भी पास की है वो वैल्यू कंसिडर की जाएँगी। If you haven't passed any value to num2, automatically its default value will be used. So its default value is 5. So if you do not pass any value to num2, its default value which is nothing but 5 will be used. तो in this case यहाँ पे num2 का वैल्यू पास नहीं किया है, या इसका मतलब है b पास नहीं किया है, तो in that case 5 will be used as a default value। तो जो subtraction है वो num1 minus this num2 which is nothing but 5 हो जाएगा। तो in that case वहाँ पे 10 minus 5 which will be 5। तो expected result is 5 which I am getting over here। ओके, लेकिन क्या होगा, आपने यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू भी दी है और यहाँ पे आर्गुमेंट भी पास कर लिया, तो यहाँ पे थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट लगेगा कि यहाँ पे आपने डिफॉल्ट वैल्यू भी दी है एंड यू आर आल्सो पासिंग द आर्गुमेंट। तो इन दिस केस अगर आपने आर्गुमेंट पास किया है तो ये जो पास की है वो वैल्यू यूज की जाएंगी, डिफॉल्ट को इग्नोर किया जाएगा। और अगर आपने यहाँ पे पास नहीं की है तो ओनली इन दैट केस डिफॉल्ट विल बी इन पिक्चर। तो अगेन स्टिल हियर 10 minus 20 minus 10 we must get, and here we go, we are getting -10। तो गेटिंग पॉइंट, सो अगर आपने कोई आर्गुमेंट मिस कर लिया है तो इन दैट केस यू कैन स्पेसिफाई द डिफॉल्ट वैल्यू फॉर दैट। एंड जनरली आप द इट शुड नॉट, अगर हम चाहते हैं कि इट शुड नॉट थ्रो एनी काइंड ऑफ एरर, तो एरर हैंडलिंग भी अच्छे से हो, तो इन दैट केस वी शुड प्रोवाइड सम डिफॉल्ट वैल्यूज टू सम आर्गुमेंट व्हिच आर नॉट कंपल्सरी इन फंक्शन। तो हो सकता है किसी फंक्शन के अंदर सम पैरामीटर्स, सम आर्गुमेंट्स आर नॉट कंपल्सरी ड्यूरिंग कॉलिंग, वो कॉल करने के लिए वो कंपल्सरी नहीं होने चाहिए। तो इन दैट केस वी कैन मेंशन सम डिफॉल्ट आर्गुमेंट और सम डिफॉल्ट पैरामीटर्स value। So in this case, we can mention this as a default value। Now next important thing, क्या हम फंक्शन को मल्टीपल वैल्यूज पास कर सकते हैं एज अ लिस्ट, एज अ सिंगल वैल्यू। तो अगर मैं यहाँ पे एक इंस्टेड ऑफ ए एंड बी मैं चाहता हूँ कि एक ही वेरिएबल होगा नम, विच इज इक्वल टू इसके अंदर दो नंबर होंगे 10 एंड 20। तो यहाँ पे मैं दो दो नंबर पास करने से अच्छा हूँ ये पूरा लिस्ट ही पास करूंगा नम। तो क्या ये पॉसिबल हो पाएगा कि हम यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज एक सिंगल, जैसे हमें पता है कि हमने नॉर्मली पहले सीखा नॉर्मल वेरिएबल्स नंबर्स हमने पढ़े, तो उसके अंदर वी हैव यूज सो मेनी वेरिएबल्स, और अगर मुझे मल्टीपल डेटा सिंगल वेरिएबल में स्टोर करना था तो वी हैव सीन कलेक्शन डेटा टाइप्स इन पाइथन, उसके अंदर वी हैव डिस्कस लिस्ट, ट्यूपल, सेट एंड डिक्शनरी। तो क्या ये पॉसिबल होगा कि हम वो सारे एज अ लिस्ट या फिर सेट, ट्यूपल ये सब पास कर पाएंगे? तो डेफिनेटली आप पास कर सकते हो। यहाँ पे हमने नम पास किया, तो इन दैट केस यहाँ पे एक ही आर्गुमेंट है, तो यहाँ पे भी आपका एक ही आर्गुमेंट बनेगा, वो होगा नम। देयर विल बी ओनली वन आर्गुमेंट।
और यहाँ पे इंस्टेड ऑफ num वन माइनस num टू, यहाँ पे सीधा होगा इंडेक्सिंग का फंडा, num ऑफ जीरो माइनस num ऑफ वन। ये समझ में आ गया आपको? या एज यू आर पासिंग दिस लिस्ट, यहाँ पे आप लिस्ट पास कर रहे हो, तो लिस्ट के एक एक एलिमेंट, इसका पहला एलिमेंट अगर मुझे लेना है तो वी हैव सीन द इंडेक्सिंग मेथड इन द लिस्ट, num ऑफ जीरो, इससे हमें पहला मिलेगा, num ऑफ वन से हमें दूसरा वाला मिलेगा। सो इन दिस वे वी कैन एक्चुअली वर्क ऑन, एंड अगेन वी कैन पास द मल्टीपल आर्गुमेंट्स एज अ लिस्ट। तो इस तरह से हम मल्टीपल आर्गुमेंट इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट पास कर सकते हैं किसी भी फंक्शन के अंदर। सो नाउ विल डिस्कस कि अगर मेरे पास यहाँ पे, फिर से मैं इसको हटा देता हूँ, और यहाँ पे फिर से मेरे पास ए एंड बी है, और एक पॉसिबिलिटी हो सकती है ए कॉमा बी। और अगर मेरे पास यहाँ पे हो सकता है कि बहुत सारे आर्गुमेंट्स मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ, लेट्स से 10 नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स, 20 नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स, एंड द फंक्शन इज एक्चुअली हैविंग दैट मेनी आर्गुमेंट। तो अगर मुझे पता नहीं है कि कितने आर्गुमेंट्स are passed to this function. So how many arguments are passed to this function? If I don't know that thing, in that case, I can use arbitrary arguments star args. Okay. So in this case, we can use arbitrary arguments या फिर पैरामीटर्स भी आप उनको बोल सकते हो, और इन सिंपल लैंग्वेज दे आर कॉल्ड स्टार args। तो ये पैरामीटर्स क्या होते हैं? तो अगर मुझे पता नहीं है कि यहाँ पे 2 वैल्यू पास किए, 3 वैल्यू पास किए, तो मुझे यहाँ पे भी उतने ही लिखने पड़ेंगे कि num1, num2, num3, num4 एंड सो ऑन। सो इफ आई रियली डोंट नो कि हाउ मेनी आर्गुमेंट्स यहाँ से पास किए हैं, सो इन दैट केस आई कैन यूज दिस आर्बिट्ररी आर्गुमेंट्स, एंड इन दैट केस आपको यहाँ पे ऐड करना होगा सिंपली स्टार। तो इफ यू ऐड स्टार हियर, तो यहाँ से जितने भी आर्गुमेंट पास किए हैं, इन सब की एक लिस्ट बनेगी या फिर एक टुपल बनेगा, मोस्ट मोर करेक्टली टुपल बनेगा, एंड दैट यू कैन एक्सेस लाइक दिस, num वन माइनस num टू, और num ऑफ जीरो, num ऑफ वन। जो पहला आर्गुमेंट है दैट विल बी दिस num ऑफ जीरो, and second will be num of 1. So in this way it will happen. Okay, if you don't know कि कितने arguments है, तो वहां पे कितने, यहाँ पे num1, num2, num3, num4, इस तरह से हम लिखेंगे generally. But if you don't want to write like this, you can simply write star num. In that case, if you pass here 10 number of arguments, तो that will be copied into tuple num, इसके अंदर कॉपी हो जाएंगे, tuple के अंदर इसका एक tuple बनेगा। तो उसमें के एक एक आर्गुमेंट को एक्सेस करने के लिए फिर से हम इंडेक्सिंग का फंडा यूज करेंगे। इन दिस वे वी कैन यूज दिस वन, एंड अगेन वी कैन रन दिस। तो अगेन वी आर गेटिंग दिस -10 एज अ रिजल्ट, विच इज वेरी मच करेक्ट। तो ये हो गया आर्बिट्ररी आर्गुमेंट्स। अगर हमें पता नहीं कि कितने यहाँ पे पास किए हैं, तो वी कैन यूज अ स्टार एंड सम वेरिएबल, और वो बनेगा टुपल। सिमिलरली अगर हमारे पास कीवर्ड है, कीवर्ड आर्गुमेंट्स है, तो फॉर एग्जांपल इफ आई एम यूजिंग हियर num1 इक्वल्स टू दिस a एंड num2 इक्वल्स टू दिस b, तो ये क्या बनेंगे हमारे कीवर्ड आर्गुमेंट्स, दिस num1 इक्वल टू a एंड num2 इक्वल टू b, दैट विल बिकम अ कीवर्ड आर्गुमेंट जिसके साथ हमने कीज पास किए हैं num1 एंड num2, दिस विल बिकम अ कीवर्ड आर्गुमेंट। नाउ यहाँ पे हमें फिर से यहाँ पे num1 num2 लिखना पड़ेगा, सो दैट दिस वैल्यूज विल बी कॉपीड इनटू num1 एंड num2। तो अगर मुझे यहाँ पे इंस्टेड ऑफ राइटिंग, और इफ आई डोंट नो कि कितने कीज यहाँ पे पास किए, कितने वैल्यूज पास किए, मुझे सिर्फ यहाँ पे एक ही वेरिएबल के साथ हैंडल करना है, तो इन दैट केस आई कैन यूज आर्बिट्ररी कीवर्ड आर्गुमेंट्स। सो इंस्टेड ऑफ सिंपल आर्गुमेंट्स आई कैन यूज कीवर्ड आर्गुमेंट्स। तो उसके लिए यहाँ पे सिंगल स्टार के अगेंस्ट डबल स्टार देना पड़ेगा। एंड सेकेंडली, ये जो num वेरिएबल है, इसके अंदर दो कीज है, द फर्स्ट की इज num1 एंड सेकेंड की इज num2। सो इन दिस केस दिस num विल बी डिक्शनरी। ओके, इन केस ऑफ आर्बिट्ररी आर्गुमेंट्स दिस num विल बी टुपल, तो उसको टुपल की तरह एक्सेस करना पड़ेगा, num ऑफ जीरो, num ऑफ वन। अगर आर्बिट्ररी कीवर्ड आर्गुमेंट है, तो जो नम वहां पे यूज किया, या फिर जो भी वेरिएबल आपने, या फिर जो भी आर्गुमेंट वहां पे यूज किया है, दैट विल बिकम अ डिक्शनरी। तो उसको डिक्शनरी के हिसाब से एक्सेस करना पड़ेगा। नाउ डिक्शनरीज के कीज है num1 एंड num2, यहाँ पे जो num1 एंड num2 है, ये डिक्शनरीज के कीज है, तो वो आपको यहाँ पे इस तरह से लिखने पड़ेंगे, num1 एंड द सेकेंड की इज num2. So this is another key of your dictionary. So now you have two different keys, num1 and num2.
तो इस तरह से फिर आप इसको कॉपी करोगे एंड अगेन वी आर गेटिंग द सेम रिजल्ट। ओके, सो क्विकली शॉर्ट इंट्रोडक्शन और फिर से मैं एक बार रिवाइज करता हूँ क्या क्या हमने देखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सीन व्हाट आर फंक्शंस। तो फंक्शंस क्या होते हैं, व्हाई डू यू वी यूज द फंक्शंस। तो कोड को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करने के लिए छोटे छोटे ब्लॉक्स में हम डिवाइड करेंगे एंड देन एवरी स्मॉल ब्लॉक विल बी डूइंग सम डिफरेंट टास्क एंड हम उसको इंटरकनेक्ट भी कर सकते हैं। नाउ देर कैन बी थ्री पॉसिबिलिटीज। एक तो फंक्शन is not communicating with each other, two different codes are not communicating with each other, simply हम उसको कॉल कर रहे हैं। सो आफ्टर कॉलिंग तो वो फंक्शन उसके खुद के वैल्यूज ले रहा है एंड इट इज अगेन डूइंग एडिशन सब्सट्रैक्शन जो भी ऑपरेशन है एंड इट इज प्रिंटिंग रिजल्ट इन द फंक्शन ओनली। तो देर इज नो प्रॉपर कम्युनिकेशन। दूसरा हमने देखा पॉसिबिलिटी कि जहां पे हम फंक्शन को कुछ इनपुट दे रहे हैं, टू नंबर्स वी आर पासिंग टू द फंक्शन, नाउ फंक्शन इज टेकिंग दोज टू नंबर्स and doing some operation and printing result in function itself, so again there is one way communication, no two way communication। फिर हमने देखा कि फंक्शन विल रिटर्न बैक। तो हम फंक्शन को कुछ इनपुट देंगे इंफॉर्मेशन, उस इंफॉर्मेशन को फंक्शन प्रोसेस करेगा एंड जो भी प्रोसेस डेटा है वो रिटर्न करेगा। सो दिस विल बिकम टू वे कम्युनिकेशन। तो टू वे कम्युनिकेशन हमने देखा। उसके बाद हमने देखा कि फंक्शन को जो डेटा आप इनपुट दे रहे हो, अगर उनका ऑर्डरिंग आपने गलत किया तो डेफिनेटली विल गेट द रॉन्ग रिजल्ट। द डेटा विल बी कॉपीड इनटू रॉन्ग वेरिएबल्स। टेम्परेचर का ह्यूमिडिटी के अंदर चला जाएगा, ह्यूमिडिटी का टेम्परेचर के अंदर चला जाएगा, जो भी डेटा है। सो इट विल बी wrongly copied in different variables। तो उसके लिए एक सॉल्यूशन है कीवर्ड आर्गुमेंट्स। सॉरी, हम कीवर्ड आर्गुमेंट्स यूज कर सकते हैं जिसके अंदर हम कुछ की स्पेसिफाई कर सकते हैं, नम वन नम टू। उसके बाद आप ऑर्डर कोई भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो जो कीज आपने दिए है वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। उसके बाद हमने देखा कि अगर फंक्शन को दो आर्गुमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, इन फंक्शन डेफिनेशन अगर आपने दो आर्गुमेंट्स लिखे हैं और अगर एक ही आर्गुमेंट पास किया तो इट विल थ्रो एन एरर। और अगर वहां पे दो आर्गुमेंट की रिक्वायरमेंट और तीन आर्गुमेंट आप पास कर रहे हो तो भी वो वहां पे एरर जनरेट करेगा। तो इन दैट केस अगर आप किसी आर्गुमेंट को डिफॉल्ट रखना चाहते हो कि इफ इट इज पास, तो जो पास किया हुआ वैल्यू वो यूज किया जाएगा। एंड इफ सम वैल्यू इज नॉट पास्ड, इन दैट केस वो जो भी डिफॉल्ट आपने वहां पे डिफाइन किया है उस वैल्यू को यूज किया जाएगा। तो उसके लिए हमने डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स फंक्शन के अंदर यूज किए। उसके बाद हमने देखा कि हम फंक्शन को चाहे 10 नंबर ऑफ वैल्यूज पास करें, 20 नंबर ऑफ वैल्यूज पास करें, फंक्शन का जो डेफिनेशन है अगर मैं वहां पे एक ही वेरिएबल यूज करना चाहता हूँ या फिर मुझे पता नहीं है कि इस फंक्शन को कितने वैल्यूज पास किए जाएंगे, तो इन दैट केस आई कैन यूज आर्बिट्ररी आर्गुमेंट। तो उसके लिए मुझे सिंपली वहां पे जो कुछ भी मैं आर्गुमेंट लिखूंगा उसके पीछे एक साल सिंगल स्टार लगानी पड़ेगी। तो अगर इफ आई ऐड सिंगल स्टार वहां पे, तो दैट विल बिकम आर्बिट्ररी आर्गुमेंट। तो इन दैट केस जितने भी आप आर्गुमेंट्स उस फंक्शन को पास करेंगे वो उसका एक टुपल बन जाएगा। वो सारे आर्गुमेंट्स विल बी कॉपीड इन अ टुपल और वो जो टुपल है उसको टुपल की तरह आप एक्सेस करोगे। अगर नम है तो नम ऑफ जीरो मतलब पहला जो आर्गुमेंट पास किया है वो, नम ऑफ वन मतलब सेकंड आर्गुमेंट जो भी पास किया है वो। सेकेंडली अगर मैं कीवर्ड आर्गुमेंट्स यूज कर रहा हूँ, आई एम नॉट यूजिंग द नॉर्मल आर्गुमेंट्स, इफ आई एम यूजिंग द कीवर्ड आर्गुमेंट, स्टिल आई वांट सिंगल वेरिएबल ओवर हियर। तो इसको हम आर्बिट्ररी कीवर्ड आर्गुमेंट्स के हिसाब से कर सकते हैं जहां पे आप डबल स्टार करोगे और इन दैट केस जो भी आप कीवर्ड आर्गुमेंट यहाँ से पास करोगे वो सारे एक डिक्शनरी के हिसाब से ट्रीट किए जाएंगे और वो डिक्शनरी बनेगी उसकी, वो हो जाएगा नम। और फिर आप इसको उसी तरह से एक्सेस कर पाओगे जिस तरह से हमने डिक्शनरी को एक्सेसिंग किया है, जैसे कि वो जो डिक्शनरी का नेम है एंड उसका जो की है, तो इसका कीज है num वन एंड num टू। सो इन दिस वे वी कैन एक्सेस आवर डिक्शनरी। सो दिस इज हाउ द फंक्शंस और डिफरेंट डिफरेंट वेज के अंदर हम फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं एंड देयर कैन बी सो मेनी पॉसिबिलिटीज। ना हमने एक तो देखा है कि हम फंक्शन को मल्टीपल आर्गुमेंट इस तरह से पास कर सकते हैं, num वन num टू करके इस तरह से वॉट एवर नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स यू वांट टू पास यू कैन पास। और इन अ सिंपल वे यहाँ पे only num1 a comma b, I can pass two different arguments like this, and these two different arguments I will have to use over here num1 comma num2 in this particular way, and यहाँ पे you can go and write num1 minus num2
लाइक दिस। तो ये अपना बेसिक फंडा या फिर हमने अभी तक जो भी बेसिकली देखा है, इन दिस वे हमने किया हुआ है। ओके, इन दिस वे वी हैव रिटर्न दैट वैल्यू। लेकिन क्या यहाँ पे फंक्शन मल्टीपल वैल्यूज को रिटर्न कर सकता है? यहाँ पे हमने ओनली सिंगल वैल्यू को रिटर्न किया है, ओनली सब्सट्रैक्शन हुआ है। क्या हम यहाँ पे कुछ ऐसा फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं कि वो मल्टीपल वैल्यूज को रिटर्न कर सकता है? तो डेफिनेटली हम कर सकते हैं। जैसे हम मल्टीपल वैल्यूज पास कर रहे हैं, तो वो मल्टीपल वैल्यूज भी रिटर्न कर सकता है। तो इंस्टेड ऑफ दिस सब्सट्रैक्शन फंक्शन, आई डिफाइन अ फंक्शन कॉल्ड अरिथ, जो कि अरिथमेटिक ऑपरेशंस करेगा। नाउ दिस विल रिटर्न मल्टीपल वैल्यूज। तो यहाँ पे पहले मैं यहाँ पे ले लूंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल रिटर्न a प्लस बी, सॉरी num वन प्लस num टू। दिस विल रिटर्न num वन प्लस num टू, दिस इज वन वैल्यू। सेकेंड वैल्यू इट विल रिटर्न num वन माइनस num टू। थर्ड वैल्यू इट विल रिटर्न num वन स्टार num टू। एंड फोर्थ वैल्यू इट विल रिटर्न num वन डिवाइड बाय num टू। तो जितने भी वैल्यूज है उनका आप एक टुपल फॉर्म करो। टुपल क्यों बोल रहा हूं मैं? बिकॉज आई एम यूजिंग राउंडेड ब्रैकेट्स। तो राउंडेड ब्रैकेट्स के अंदर वो टुपल हो गया। टुपल के अंदर पहला वैल्यू है num वन प्लस num टू, num वन माइनस num टू, सॉरी यहाँ पे इट शुड बी num वन माइनस num टू, अगेन इट शुड बी num वन इंटू num टू एंड num वन डिवाइड बाय num टू। इस तरह से आप रिटर्न में एक ही साथ लिख दो। या फिर आप यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हो कि रिजल्ट 1 equals to num1 plus num2, result 2 equal to num1 minus num2, result 3 equal to num1 into num2, and result 4 equal to num1 divided by num2. And in that case return के अंदर return result 1 comma result 2 result 3 result 4, इस तरह से भी आप लिख सकते हो। ये एक स्टेप बढ़ा सकते हो। In order to save some time and some lines of codes, I have written directly like this. तो इस तरह से आप जा सकते हो। In that case ये जो arith function है, ये क्या रिटर्न करेगा? मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न करेगा। इट विल रिटर्न द मल्टीपल वैल्यूज। ओके, तो यहाँ पे मेरे वेरिएबल्स ए एंड बी है, तो मैं यहाँ पे ए एंड बी ही लिखूंगा, और जो भी रिजल्ट है वो एस वेरिएबल के अंदर आ जाएगा। तो कीप इन माइंड, वेरिएबल्स के नाम आप कुछ भी लिख सकते हो, और ये सारे नेम्स भी आप कुछ भी लिख सकते हो। तो मैं अगर इसको रन करूंगा तो मुझे रिजल्ट मिलेगा इन दिस फैशन। और ये जो भी रिजल्ट मिला है ये क्या है? टुपल है, क्योंकि राउंडेड ब्रैकेट्स के अंदर है, सो इट इज टुपल। सो दिस इज हाउ यू कैन रिटर्न मल्टीपल वैल्यूज। नाउ आप ये बोलोगे कि ठीक है, ये मल्टीपल वैल्यूज इसने रिटर्न करे हैं, लेकिन मुझे इसमें का सिर्फ एडिशन का ही रिजल्ट चाहिए, बाकी के जो रिजल्ट है दैट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन इट। तो अगर मुझे एडिशन का रिजल्ट लेट से ऐड चाहिए, तो एस एस मतलब जो भी यहाँ पे रिटर्न किया, नाउ दैट इज अ ट्रिपल। तो मैं इसको इस तरह से लिखूंगा कि एस ऑफ जीरो, इंडेक्सिंग का फंडा यूज करूंगा, और यहाँ पे मैं लिखूंगा ऐड। तो अगर मुझे एडिशन का रिजल्ट चाहिए, so I will write add equal to s of 0. Why s of 0? Because s is a tuple. तो जो अपने वहां से पास किया हुआ है that is the tuple. तो यहाँ पे जो कुछ भी बना हुआ है that is nothing but tuple. तो ये num1 plus num2, num1 minus num2, num1 star num2, num1 divided by num2। तो यहाँ से जो कुछ भी रिटर्न होगा ये एक टुपल हो रहा है यहाँ से रिटर्न, बिकॉज इट इज इन राउंडेड ब्रैकेट्स। तो जो s के अंदर आएगा वो होगा टुपल। तो अगर मुझे उसमें का एडिशन का जो फर्स्ट पोजीशन है उसका वैल्यू चाहिए, सो एस ऑफ जीरो करेंगे तो वो मिलेगा, एस ऑफ वन करेंगे तो ये मिलेगा, एस ऑफ टू करेंगे तो ये मिलेगा, और एस ऑफ थ्री करेंगे तो डिवीजन का मिलेगा। सो इफ आई रन दिस वन, नाउ आई एम गेटिंग रिजल्ट इक्वल टू 30। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे एस ऑफ थ्री करूंगा तो ये हो जाएगा ये डिवीजन का रिजल्ट, विच इज नथिंग बट 0.5। तो यहाँ पे मुझे रिजल्ट इक्वल टू 0.5 इस तरह से मिलेगा। तो इधर यू कैन यूज लाइक दिस, यहाँ से इस तरह से भी कर सकते हो। अदरवाइज आप डायरेक्ट इंडेक्सिंग यहाँ पे दे सकते हो। ओके, एक स्टेप मैंने एक्स्ट्रा किया जो कि सिंपल है। अभी जो अरिथ है, दिस इज नथिंग बट द रिजल्ट। अगर मुझे यहाँ पे एडिशन का रिजल्ट चाहिए, तो मैं ये जो अरिथ है, इसका मतलब ये टुपल है पूरा, जो कुछ भी होके आएगा इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पे इंडेक्सिंग कर सकता हूँ। उसके बाजू में आई कैन राइट दिस स्क्वायर ब्रैकेट और उसका इंडेक्स। तो ये जो अरिथ फंक्शन ये सब कुछ करेगा। नाउ दिस विल मेक दिस टुपल एज अ रिजल्ट। उसका जीरो मतलब एडिशन, उसका वन मतलब सब्सट्रैक्शन। तो अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा तो आई एम गेटिंग 30।
If I want 1, then this will be subtraction. तो ये subtraction मिल रहा है यहाँ पे 10 minus 20. In this way I'll get the result. Okay, I can use this indexing वाला फंडा as well here only. और एक है कि मैं चाहता हूं कि चारों के चारों डेटा मुझे मिले अलग अलग वेरिएबल्स के अंदर. इट शुड नॉट गिव मी इनसाइड अ टुपल. तो जैसे अभी यहाँ पे इसको रिटर्न करेंगे तो मुझे एक ही टुपल मिलेगा जो कि है इस तरह से रिजल्ट इक्वल टू 30 माइनस 10 200 एंड 0.5. दीज आर द टुपल एंड आफ्टर दैट आई विल हैव टू एक्सेस ऑल दीज वैल्यूज. एज दिस फंक्शन इज रिटर्निंग 4 वैल्यूज, तो सिंपली यहाँ पे अगर मैं एड कॉमा सब कॉमा मल्टीप्लीकेशन कॉमा डिवीजन ऐसे 4 फंक्शन अगर मैं यहाँ पे 4 वेरिएबल्स अगर मैं यहाँ पे क्रिएट करूंगा तो ये सारे वेरिएबल्स और ये जो सारे हैं वो इसके अंदर कॉपी हो जाएंगे. तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एडिशन इक्वल टू ऐड. सिमिलरली अगर मैं नीचे और भी लिखूंगा कि मल्टी डिवीजन इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू, और या फिर मैं यहाँ पे 4 लिख देता हूँ. एडिशन इक्वल्स टू दिस वन एंड subtraction equals to this one, multiplication equal to this one, and division. तो ऑफ कोर्स यहाँ पे जो भी वेरिएबल्स है वो अलग होंगे. तो दिस इज डिवीजन, दिस इज मल्टीप्लिकेशन, दिस इज सब्सट्रैक्शन एंड दिस इज ओके एडिशन ही था. इट शुड बी एडिशन ओनली. तो अगर इस तरह से मैं लिखूंगा तो यहाँ से जितने भी वैल्यूज रिटर्न हो रही है दैट विल बी स्टोर्ड इन 4 डिफरेंट वेरिएबल्स. तो इन सब वेरिएबल्स के अंदर स्टोर की जाएंगी और इन सब वेरिएबल्स को इस तरह से प्रिंट भी करवाया जा सकता है. तो एक तो आप टुपल की तरह उसको एक्सेस करो या फिर यू कैन एक्सेस इन दिस पर्टिकुलर वे. सो दिस हाउ द फंक्शन कैन रिटर्न मल्टीपल वैल्यूज. और अगर वो मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न कर रहा है तो मल्टीपल वैल्यूज को एक्सेस आप इस तरह से कर पाओगे. एक तो आप उसको सीधा सीधा इंडेक्सिंग का फंडा अप्लाई करो या फिर यू डिफाइन मल्टीपल वेरिएबल्स और you can define multiple things, and based on these multiple variables you can take multiple datas in different variables and वो उसको आप इस तरह से प्रिंट करवा सकते हो. सो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग थिंग एज पर एज दी फंक्शंस आर कंसर्न. तो हमने क्या क्या देखा कि फंक्शन मल्टीपल वैल्यूज इनपुट ले सकता है, मल्टीपल वैल्यूज को रिटर्न भी कर सकता है, एंड देन हमने बहुत सारे कीवर्ड आर्गुमेंट्स एंड अदर स्टफ फंक्शन के बारे में देखा है. तो फंक्शन इन दिस वे इट कैन रिटर्न. तो यहाँ पे हमने देखा कि कोई दूसरा कोड किसी दूसरे कोड को कॉल कर रहा है. मतलब लेट्स से कि प्रिंसिपल इज असाइनिंग सम वर्क टू एचओडी या फिर एचओडी इज असाइनिंग सम वर्क टू दी प्रोफेसर्स. तो वो एक दूसरे को कुछ कम्युनिकेट कर रहे हैं. कोई सेकेंड पार्टी किसी और पार्टी को कम्युनिकेट कर रही है या फिर कॉल कर रही है. if some different function is calling to some another function, that means the principal is calling HOD to do some task. लेकिन क्या ये हो सकता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कि सेम फंक्शन इज कॉलिंग द सेम फंक्शन? इफ इज इट पॉसिबल दैट वन फंक्शन विच इज डिफाइंड इज कॉलिंग द सेम फंक्शन? मतलब अरित नाम का एक मैंने फंक्शन यहाँ पे बनाया हुआ है एंड वो फंक्शन खुद को ही कॉल कर रहा है, खुद को ही बार बार कॉल कर रहा है या फिर उसको कुछ काम असाइन कर रहा है. तो इससे भी ये भी पॉसिबल है. दिस इज ऑल्सो पॉसिबल इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड मोस्टली आपने सी लैंग्वेज में भी ये चीज़ पढ़ा होंगी कि एक फंक्शन उसी फंक्शन को कॉल कर सकता है और इसे हम बोलेंगे रिकर्शन इन टेक्निकल लैंग्वेज और इन टेक्निकल टर्म. एंड इस ऐसे फंक्शन को हम रिकर्सिव फंक्शन बोलेंगे. सो द फंक्शन विच इज कॉलिंग इटसेल्फ इज कॉल्ड एज द रिकर्सिव फंक्शन. So we'll discuss how the recursive function will work and how to define the recursion. Okay, so now we are going to see what are the recursive functions are and how the recursion is going to happen.
So first of all, the recursive functions are nothing but the functions which are calling itself. Now, in order to see this recursive function, we'll use a simple function called factorial. Okay, so the factorial is a function, और the factorial मैथमेटिक्स में अगर आप factorial किसी नंबर का आपने देखा होगा, तो उसके लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूँ कि लेट्स से 5 factorial. 5 factorial का मतलब होता है 5 into 4 into 3 into 2 into 1, and provided that 1 factorial equals to 1 and 0 factorial equals to also 1. तो ये दो कंडीशंस होती है। फैक्टोरियल एक मैथमेटिकल टर्म है या फिर एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिसका मतलब होता है कि अगर आप किसी नंबर का फैक्टोरियल इफ यू वांट टू फाइंड इट आउट, so it will be 5, let's say 5 factorial, so it will be 5 into 4 into 3 into 2 into 1, so this will be a 5 factorial. And in this case there are some exceptions, like 1 factorial is 1. It will not be 1 minus matlab 1 into 0 into minus 1, like that it will not be like that. And provided that 0 factorial is also 1, for example if it is 0, that means its factorial is also 1. तो यहाँ पे अगर ये जो n है, that is the number that user going to pass. तो if यहाँ पे हम चेक करेंगे कि if this number is equal to 1, or this number, sorry, I am using n over here, so I'll be using this n only because n variable को मैंने use किया है. So or this n is equal to 0. So in that case, return 1. So if the user is passing 1 as input or 0 as input, that means its factorial will be 1, because this is the definition of factorial. So we are actually going to solve the problem of factorial in mathematics, जहाँ पे if I want to calculate the factorial of 5, then it will be 5 into 4 into 3 into 2 into 1. So any number का factorial will be like this. So if I pass any number, so objective is, तो हम यहाँ पे एक function define करेंगे and we'll pass some number to that function. It will calculate the factorial of that number, and after calculating the factorial it will return the result. तो यहाँ तक तो ठीक है. If it is 1 or 0, that is totally fine. लेकिन अगर वहाँ पे कुछ और नंबर है, if it is something different, then it should be return n star factorial of n minus 1. Okay, is it still breaking my voice? Okay. Okay, we'll wait for some time to fix it. Now it's clear? Is it clear now? Okay. So in this case, if you see here, this factorial function is actually calling the factorial function itself. So in this case, if I call this factorial function with some number, if that number is equal to 1, or if that number is equal to 0, it will return 1. Else it will return n star factorial of n minus 1. It will return n minus 1. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये फैक्टोरियल फंक्शन को कॉल हो रही है. कौन कॉल कर रहा है इस फंक्शन को? ये फैक्टोरियल इटसेल्फ कॉलिंग द फैक्टोरियल फंक्शन. तो ऐसे फंक्शन को हम रिकर्सिव फंक्शन बोलेंगे, जो फंक्शन खुद को ही कॉल करता है. तो ये भी पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पे ऑफ कोर्स आपको एक नंबर लेना पड़ेगा. लेट्स से नंबर इक्वल टू 5, and then you will have to call this function factorial with this num. Okay, so we'll call this one.
and of course it should give the result f equal to factorial because ये return कर रहा है कुछ ना कुछ तो, and then print factorial of number is equals to this f. This is f. The factorial of number is equal to f. तो फिर से I'll clear this terminal so that I can get the clear result. Okay. So here we are passing some number. We'll pass some number, and that number is 5 in this particular case. So this f equal to factorial of num. So this means this should be there. So it should be 5 into 4 into 3 into 2 into 1. So 5 into 4, that means 20, 20 into 3, that means 60, 60 into 2, that is 120, and 120 into 1, that will be 120. So the outcome should be 120. So what will happen over here? तो यहाँ पे क्या होगा? तो एक शॉर्ट में हम यहाँ पे समझेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल n इज इक्वल टू 5. सो 5 स्टार फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1. तो इसको कॉल हो जाएंगे. सो फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1 इज नथिंग बट 4. तो 4 को कॉल हो जाएंगे. अगेन द 4 इज नॉट इक्वल टू 1 and not equal to 0. So it will not return 1. So again here 4 star. ओके फिर से फैक्टोरियल ऑफ n माइनस वन मतलब 4 माइनस वन मतलब 3. तो फिर से फैक्टोरियल ऑफ 3 को कॉल हो जाएंगी. अगेन इट इज नॉट इक्वल टू 1 नॉट इक्वल टू 0 अगेन. सो हियर अगेन रिटर्न n मतलब अभी 3 था. स्टार फैक्टोरियल ऑफ n माइनस वन. अगेन दिस विल बी 2, and again next time it will be equals to 1. तो जब भी whenever this will become 1, in that case फिर से factorial function को call नहीं की जाएंगी because now the n is equal to 1. So if the n is equal to 1, it will immediately return 1. Okay, in that case there will be no recursive call. तो फिर से इसको execute नहीं किया जाएगा और finally we'll get this 5 into 4 into 3 into 2 into 1, and that will be the factorial result. So if I print this one, I'll be getting factorial of number equal to 120. अगर मैं यहाँ पे 1 पास करूँगा तो as you know the factorial of 1 is equal to 0. Sorry 1. I'm getting over here 1. If I pass 0, again the factorial is 1 again. If I pass here 10, then it will be 10 into 9 into something. Okay, so that will be a huge number. So again I'm getting this is a factorial of 10, so it is 36,000. Maybe this could be large number. Okay, so this is around in terms of some crores we are getting this number. So this is how the factorial can be called, and this kind of function is called as recursive function or the recursion concept in the programming. So where the function is calling itself, no other function is calling. So first of all we are this particular code इज कॉलिंग दिस फंक्शन. तो ये एक फर्स्ट स्टेप है, और उसके बाद यही फंक्शन इसको बार बार कॉल कर रहा था यूजिंग दिस फैक्टोरियल. तो दिस इज कॉल्ड एज recursion in the programming or the recursive function. So this is again very much important concept. So we'll stop over here and we'll wait in the chat section for some doubts. In the next lecture we'll discuss about the modules and the packages in the Python. तो ये हमने function इस तरह से define किए हैं. Now the module is nothing but the collection of the functions, different functions, and the package is nothing but collection of different modules. The function is nothing but a small code which is doing some task on its own. Module is nothing but collection of such functions, so you can put so many functions inside a module. एंड अ पैकेज इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स. तो उसके अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स होंगे, मतलब फंक्शन हुआ, फंक्शन का कलेक्शन हो गया मॉड्यूल, और बहुत सारे मॉड्यूल्स का कलेक्शन हो गया एक पैकेज. तो हम इन टुमारोज लेक्चर विल अंडरस्टैंड हाउ टू क्रिएट अ मॉड्यूल and also how to create a package. Now we have understood how to create a function and how to operate on that function, how to use that function in different ways. एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग दिस, नाउ विल वेट इन द चैट सेक्शन. अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई, फॉर एग्जांपल आपको रिकर्शन समझ में नहीं आया, या फिर इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड एनी कीवर्ड आर्गुमेंट्स और समथिंग, तो आप अभी चैट में पूछ सकते हो, सो दैट विल रिपीट दैट थिंग. ओके, सो विल वेट इन द चैट सेक्शन फॉर फ्यू मिनट्स.